and welcome to Prime Debate. 80% of India lives in poverty with massive unemployment and barbaric social practices. But 90% of the coverage of the media goes to entertainment and even astrology. That's the assessment of the Press Council of India Chairman M. Kachchu. His remarks have sparked a row but also fortunately triggered a much needed debate on what is the media up to. Why is it being allowed to be the way it is? Who keeps a check on it, and why does it shy away from self-introspection? Self-regulation by media. That was perhaps the crux of what the new Press Council of India Chairman, Justice Markandeya Kachchu, wanted to say. What he managed, however, is a controversy that refuses to die down. That he has a poor opinion of the country's media could have been taken as personal views of a retired Supreme Court judge. But his remarks that the majority of media people are of very poor intellectual level with no idea of economic theory or political science, philosophy, literature, well, that has the media crying foul. And amidst all this noise, the real debate has been lost on whether the media in India is playing its role with transparency and accountability, whether the media, particularly the electronic media, needs a regulatory body to keep a check, and how some sort of self-introspection would do the media a world of good. So Justice Kachchu has raised a very important debate, and in a democracy, as I just said, unless you have a debate and dialogue on issues, especially which are of concern to the common person, you can't arrive at a final solution. In his clarification later, Justice Markandeya Kachchu had said that by criticizing the media, he wants to persuade it to change its manner of functioning, that the Indian media has a historical role to play in the age of transition, and how its practitioners have a historical duty towards the nation. And to discuss this, we are joined in the studios by veteran journalist Chandra Trikha, Braj Mohan, resident editor of Dainik Bhaskar, Chandigarh, and Sarabjit Pandher, special correspondent of The Hindu. Well, thank you all for being with us this evening. Mr. Trikha, if I begin with you, whatever Justice Kachchu said, do you think his voice was, his tone, I mean, did it upset you, the way he said it, the tone and the way he went about it? Yes. The words that he used specifically? That was definitely, in fact, it was not acceptable that way, because otherwise dialogue is a must between the media and the people, and the, particularly those people who are known as media watchdog. So dialogue is a must, of course. So he has raised certain issues definitely, but the tone and the tenor, that was not acceptable. उसमें definitely लगता है कहीं ना कहीं अपने ब्रीफ से थोड़ा सा बाहर चले गए. अब वो ये बात शायद भूल गए कि वो इस वक्त जिस चेयर पे हैं, जिस पद पे हैं, उस पद की अपनी एक गरिमा है, और वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, और उस नाते से ये माना जाता है कि मीडिया वॉचडॉग माना जाता है. तो उसमें डेफिनेटली ही सपोज टू हैव ए ब्रॉडर कैनवस ऑफ वर्किंग एंड थिंकिंग. तो उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के जरिए एक इशू खड़ा किया है, और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स या स्वीपिंग जजमेंट्स जो हैं वो इस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में नहीं आती. पहली बात तो ये है. ऑफ कोर्स जो उन्होंने इशू रेज किए हैं वो इशू कोई ऐसा नहीं है कि वो इररेलेवेंट हैं, रेलेवेंट हैं डेफिनेटली, बट द मैनर or the tenor in which they have been raised, that is very objectionable. Because I'll just quote, because he said things like media people are very poor intellectual level with no idea of economic theory or political science, philosophy, literature. अब ये sweeping statement है. ये sweeping statement जो है, that is not expected from such a person who has been at the helm of affairs in judiciary and who is now the chairman of the Press Council of India. तो डेफिनेटली उनका जो रुतबा है वो इस बात की मांग करता है कि उनको इस बारे में थोड़ा सा खुलेपन से बात करनी चाहिए थी. संवाद की शुरुआत करना बड़ा जरूरी है, ये बात तयशुदा है, और ये मीडिया में अपने आप पर भी चर्चा होती रही कि मीडिया इस पर संवाद करे. मीडिया ने अपने आप को बहुत सारा संयमित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए बहुत सारे निर्णय भी लिए, फैसले लिए गए. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने लिए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी लिए. जब एक हालात ऐसे बन रहे हैं कि एक सेल्फ रियलाइजेशन की बात उभरने लगी है, तो उस स्थिति में आके एक ऐसी बहस को जन्म देना है, एक ऐसी बहस को छेड़ लेना जिसका कोई अंत नहीं है, ये एक वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से ये एक्सपेक्टेड नहीं था. हाँ जी, मिस्टर ब्रज, मैं आपके पास आऊँ तो आपको क्या लगता है मीडिया की जो फंक्शनिंग है, डू यू थिंक कि इट्स डिस्पैरेजिंग? उसकी जो जब वो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, इट्स वेरी अनरियल फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी. देखिए आज टेलीविजन चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, क्रिकेट, सिनेमा, एस्ट्रोलॉजी,
अभी कुछ दिनों पहले ही जो एनबीए है, एनबीए की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जो एस्ट्रोलॉजी के शो होंगे शायद आने वाले दिनों में आपको टेलीविजन पे नहीं दिखें। तो सुबह का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है 2-3 घंटा, वो टेलीविजन पे एस्ट्रोलॉजी के लिए ही जा रहा है। खबरें आप कहां देख पाते हैं? सुबह आप टेलीविजन जब खोलते हैं आप, तो 2-3 घंटे तक आपको खबरें मिलती नहीं है। सुबह का जो वक्त होता है 6 से लेकर 9 तक, तो आपके पास कोई खबरें नहीं हो रही हैं कि पूरे देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो कवरेज है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि जो कंटेंट आप टेलीविजन में क्यों दिखा रहे हैं? आपको लाइसेंस मिला है न्यूज दिखाने के लिए, आप पूरे दिन क्रिकेट दिखाते हैं, पूरे दिन आप सिनेमा दिखाते हैं, और एस्ट्रोलॉजी का शो पूरे दिन आपके टेलीविजन शो पे चलता रहता है, भूत प्रेत टेलीविजन पे दिखते रहते हैं। हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने सवाल जो उठाए हैं वो काफी जायज हैं। संवाद की उन्होंने शुरुआत की है, हालांकि जो उनका कहने का तरीका था वो गलत था। जैसा कि उन्होंने कहा ही था शुरू में कि आई हैव वेरी पुअर ओपिनियन ऑफ मीडिया, तो उन्होंने इस बात को बताया। और अगर विरोध उनका हो रहा है तो विरोध बिल्कुल सही है, लेकिन उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने आखिरकार एक बहस की शुरुआत तो कर दी है। All right. Mr. Pandher, do you think, is it fair to say that the media is just not being responsible anymore? We are riding on fear factor of the consciousness of the people. Like he very correctly is saying that we are talking about astrology. Much more than we should be talking about other issues. More on the fear factor, on the vulnerable side. That's what we are pegging in on. What it appears is that Justice Katchu has also fallen prey to the TRPs and all that. He wants to project himself on the center stage. I'm not very sure whether I'll not go into this whether the tone or tenor of his thing. I'll again go back to what he has said about the media and all that. Okay. So again, when you say that media is not responsible, so I'll say in the largest democracy of this country, which organ is responsible? We have, as you said in your opening remarks, 80% of India is now surviving in poverty. Yes. Who is responsible for that? Right. Has the media not pointed it out? Braj has talked about that, okay, media, the electronic media wants to take away the astrology, but won't the TRPs fall? Don't people go to pundits? So those are requirements of the media. And now Justice Katchu wants to regulate the media. There is a government in place which not more than 20 years allowed deregulation of every sphere of function. Why is Justice Katchu not commenting on that? अगर हम deregulation की बात की थी, उसमें ये न्यू मीडिया आया, टीवी चैनल्स की proliferation हुई, इंटरनेट has reached every place. रेगुलेशंस जो अब तब की बात कर रहे थे, ये जो रेगुलेशंस अब बात कर रहे हैं, those regulations should have been put in place then. Right. So exactly, do you think जो पंडेर साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। विद द अराइवल ऑफ न्यू मीडिया, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जो अखबार पढ़ते रहे हैं, दूरदर्शन जो रिजीम रहा है वो देखते रहे, अभी जो पिछले 10 सालों में प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स आए हैं और जो पूरा जो इक्वेशन और जो खबरों को कवर करने का जो पैरामीटर्स है वो बिल्कुल बदला है। लेकिन ये बात भी आपको मान लेना चाहिए कि जब बड़ी घटनाएं होती हैं, जब लाइव न्यूज की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे 26/11 का आपका था, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो उस समय आपको एक कंट्रोल मैकेनिज्म की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि खबरों पे अगर रेगुलेशन आप नहीं लगाते हैं वैसी स्थिति में, तो जो आप दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा नहीं रहे होते हैं, कुछ और दिखा रहे होते हैं। अभी 2 दिन पहले जो एनबीए था, एनबीए ने ये फैसला किया कि ऐश्वर्या राय जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो भर्ती थी, तो उसके बाहर, हॉस्पिटल के बाहर वो ओबी वैन्स नहीं लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छा फैसला था। इस तरह के जो मौके आते हैं कि आप खबरों को ट्रिविलाइज करके किसी के पर्सनल डोमेन में, उनकी जिंदगी में जाते हैं और दखल करते हैं, और पूरा जो खबरों का जो एक अंदाज है उसको पूरी तरह से आप तहस नहस कर देते हैं। तो एक रेगुलेशन की बहुत ही जरूरत है। तरीका क्या होना चाहिए, बॉडी किस तरह की हो, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। और बहस ये नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो अधिकार है वो सरकार के हाथों में दे दो या प्रेस काउंसिल के हाथ में दे दो। इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, पूरे, चाहे वो टेलीविजन के लोग हों या अखबार के लोग हों, मिलजुल कर बहस होनी चाहिए, और जो बॉडी हो उसको देखे अच्छी तरह से। मिस्टर त्रिका, नहीं, इसमें देखिए सीधी सी बात यह है कि इसमें जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं, जस्टिस काटजू के एक बड़ी आपत्तिजनक उनका एक नजरिया था। उन्होंने ये कहा कि सेल्फ रेगुलेशन इज नो रेगुलेशन। ये उन्होंने खलीज टाइम के साथ अपनी इंटरव्यू में but the government of India is saying that we don't want
come in and ये एक give सुपर कॉप वाली जो एक मानसिकता है, ये एक्सेप्टेबल शायद नहीं है हमारे परिवेश में। आप एक तरफ मीडिया को आप चौथा स्तंभ मानते हैं, प्रेस को आप चौथा स्तंभ मानते हैं, फोर्थ स्टेट का दर्जा देते हैं, और उसके बाद आप उस दर्जे में एक सुपर कॉप की भूमिका को लाना चाहते हैं। ये चीज नहीं चल सकती। संसद है, संसद में भी रेगुलेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ हो हल्ला भी होता है, वहाँ मांग उठती है, और जो प्रतिपक्ष है वो अपना कई बार वो but what do you do जब fourth state is not responsible enough? ना, ये ऐसा नहीं है। ऐसा मैं नहीं मानता कि फोर्थ स्टेट जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को परिवेश में बहुत ज्यादा निभाया गया। और अब जब चेंजिंग जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखिए, आज से 10-20 साल पहले एडिटर नाम की एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। आज वो एडिटर नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो डाइल्यूट हो गया। अब इसके लिए जो चीज जिम्मेदार है वो कोई सिर्फ मीडिया नहीं है, बल्कि वो हालात हैं, इकोनॉमी है जो एकदम से चेंज हो रही है। और उस चेंजिंग इकोनॉमी के साथ साथ जो डिमांडिंग एस्पेक्ट है वो बदल रहे हैं। जब चीजें बदल रही हैं, एक एवोल्यूशन हमारा आ रहा है, ट्रांजिशनरी स्टेज से हम गुजर रहे हैं, उस स्टेज पे आके आप एक सुपर कॉप की भूमिका लेके डंडा लेके आ जाते हैं, तो ये बात कभी एक्सेप्टेबल एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जिसमें आप प्रेस को फोर्थ स्टेट मानते हैं उसमें एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। Mr. Pandher, would you agree to that we just cannot have a डंडा on our heads? नहीं, डंडा तो कहीं पे है ही नहीं। पहली बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो जस्टिस काटचू बात कर रहे हैं उनको मैं आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम, उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि टोटल सिस्टम जो हमारा है पॉलिटिकल इकोनॉमी का इज नाउ बेस्ड ऑन प्रॉफिट। एवरीथिंग इज बिजनेस, एवरीथिंग इज बिजनेस। Yes. And that's exactly what he said. It's to cooperate. The news is you're singing to the tunes of markets, and it's cooperate. Who let loose this system? Yes, that's a question. Who let loose this system on India? किसने अलाउ किया फ्री इकोनॉमी, फ्री एवरीथिंग, सेट एवरीथिंग फ्री? आपने ये कहा कि सब कुछ खुला छोड़ दो, अब खुला छोड़ दिया। नाउ यू वांट टू रेगुलेट ओनली द मीडिया। अच्छा, इन व्हाट हैज हैपेंड इज योर लेजिस्लेचर हैज फेल्ड, योर एग्जीक्यूटिव हैज फेल्ड, जुडिशरी हैज फेल्ड, and now it is only the media which is making a noise, right or wrong, right way or the wrong way, that does not matter. There are so many places where the media has come out with they have questioned the status quo, that we don't want to run this country, and if you would like to I think that will not be too harsh a thing, if you would like to go for a popularity, I think media among the people would be a popular place to for the people to voice their Opinions, even anger. That's what Yes. That's what we survive on. survive on, right? So that has given the media its power. So when the absolute power has come to the media, it's because the other three pillars of democracy have failed in their duty. Right. But So now somebody sitting there is not very comfortable that media has power. I agree, because of this absolute power, there are discrepancies. yes, So media is bound to commit mistakes. Corruption will also come in. This will come in because of absolute power which has come in. But who allowed that? Who opened those channels? all right. You know, Braj, before I go into a break, just put it to us very clearly. Do you think we need some sort of regulation or not? I mean, according to Mr. Pandher, three pillars of democracy have failed. Has the media failed the people or not really? फेल जरूर किया। जिस तरह की उम्मीदें, खासकर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जरूरतें बहुत सारी हैं, लेकिन आप एक एडिटर इसमें क्या कर सकता है? एक संपादक का रोल आप देखिए। बहुत सारे वैसे टेलीविजन चैनल को, अखबारों को मैं जानता हूं कि पिछले 5 साल पहले वो क्या कर रहे थे, अभी क्या खबरें वो दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। क्या उनके ऊपर दबाव नहीं है बाजार का? हर एक हफ्ते जब टीआरपी आती है, रेटिंग्स आती है टेलीविजन की, तो जो एडिटर होता है वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि हमारी टेलीविजन की रेटिंग क्यों गिरी है, कौन सा प्रोग्राम है जो जिसकी टीआरपी सबसे कम रही है। अगर खबरों का कोई आधे घंटे का डिस्कशन का प्रोग्राम है, उसकी टीआरपी कम आ रही है, तो वो कहता है इसको बंद कर दो। अच्छा, उस जगह पे फैशन का चीज आप उसमें डालो, जो भी हमारा पुल आउट है। लेकिन आपका 3 महीने में आ रहा है, जो अखबारों का रिजल्ट आ रहा है, रीडरशिप का सर्वे, वो 3 महीने में आ रहा है। और टेलीविजन के जो संपादक हैं उनके ऊपर तलवार लटकी होती है कि 1 हफ्ते के बाद आपका नतीजा आने वाला है, टेलीविजन का सर्वे आने वाला है, और कौन सा टेलीविजन इसमें आगे निकल जाएगा कुछ पता नहीं। तो तलवार लटकी हुई है संपादकों के ऊपर। Okay, I'm going to take a short break at this point, but when we return, we're going to talk about what really ails the media and what can be done.